Fine, so let's start talking about the concept of the bills of exchange from the core of it, from the basic of it. I know you people have done bills of exchange, but many of you consumed Mati yesterday, giving the wrong answer to the simpler questions also, because many of you had the understanding that how can the drawee be the endorsee for the same bill? Many of you were understanding that discounting charges have to be debited by the drawee also. You didn't read the question also. You always come into a kind of mindset which is preempted, which is already having some kind of statements fixed in mind. And that's not a good habit. When you're doing some answers, when you're doing some calculations, you have to think fresh. And unless and until you think afresh, you don't read the questions right. Reading is very much important. Being callous, being casual is a tough task to handle, my dear friends. Because that casual approach leads to the trouble at a later point. But when you are having focus since the since the day one, you start finding, yes, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप मौज मस्ती मत करो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वो वीडियो गेम्स मत खेलो, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप टीवी मत देखो, but at the same time मैं ऐसा कह रहा हूं कि जब आप अपनी पढ़ाई करने बैठते हो तो आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल के बैठो. You need to have a thorough focus, thorough concentration on what you have been doing when you start doing the studies. And when you do something like that, you have the kind of satisfaction yourself. You have the confidence yourself. And if you don't want to have that confidence, leave this course. I'm very seriously saying you this. It's the game of confidence to the extent of 60% and the preparation only to the extent of 40%. I repeat, it's the game of confidence to the extent of 60% and your content to the extent of 40%. आपने एक चीज 10-10 कल I got the call message from one of the student. I'll just read it for you. There is this old student, ये बहुत पुराने स्टूडेंट से जो फोन करते रहते हैं जब तक सीए नहीं बनेंगे तब तक जान नहीं छोड़ेंगे. And I don't have any kind of problem with them also. There's this girl, she had called me, she had messaged me earlier. कौन सा वाला मैसेज था, एक तो वो भी याद नहीं आ रहा मुझे, तो इतने अलग अलग नंबर से फोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं. And she had put, I'll just check if it is available. एक तो मेरे को ये इतने सारे मैसेजेस आते हैं, वजन घटाइए, उम्र बढ़ाइए एंड ऑल दैट. मुझे कौन सा वजन कम करने की जरूरत है यार, मेरा रीजनेबल है वजन. कहाँ गया? She had messaged me saying she's been doing the studies and those studies are going good. Call tomorrow, ऐसा कुछ तो लिखा था मैंने उसको. हाँ, here it is. Hello sir. Actually, I had started studying in August again. I do remember what I read before, but not perfectly. It's like first reading only for me. Sometimes easy to recollect, other times not easy. What I do is revise on daily basis for 1 hour any previous subject, just like if it formula or summary.
In spite of that, I forget. And I know it's normally happening with everyone. One of my friends said that just accept that you are going to forget and अभी पढ़ ले अच्छे से, फिर सीधे सब होने के बाद रिवीजन करना. My method is making me confident about whatever is done, but it's very slow. And his method is fast, but after a month, I might feel कि कुछ याद नहीं आ रहा. I don't know what to do. She had called me up today. And I gave her the advice that you start solving the question papers, the past examination papers. And based on that, you'll start having the confidence. Her problem is not about studies. She's been doing the studies day in and day out. CA final में लगभग रोज के 16 घंटे पढ़ाई कर रही है. लगभग. कभी 12 हो जाता होगा, कभी 18 हो जाता होगा. But she does on an average 15 to 16 hours का studies per day. When she was in intermediate at that time, she used to do the studies for around 8-10 hours per day. She was from the CPT batch. My point to highlight here is what? दिन में इतना पढ़ाई करने के बाद भी अचानक she is feeling, यार, something is going wrong with me. Will I be able to recall what I've been reading, what I've been studying, what I've been doing? और मैं कह दूं आपको, CA फाइनल लेवल का जो सिलेबस है ज्यादा बड़ा नहीं है. कुछ 12,000 पन्ने पढ़ने होते हैं CA फाइनल लेवल पे. If you take the example of हाँ, मेरा ये भाषण होने के बाद में अचानक कुछ लोग मुझे मैसेज करेंगे, सर व्हाट इज द प्रोसीजर टू चेंज द कोर्स. नथिंग ऑफ दैट काइंड, डोंट वरी ऑन दैट पार्ट एट ऑल. क्योंकि जब तक आप सीए फाइनल में चले जाते हो, आपकी लेवल बहुत अलग हो जाती है, आपकी समझदारी बढ़ जाती है, आपका वक्त बदल जाता है, आपका जज्बात बदल जाता है. सो डोंट वरी ऑन दैट पार्ट. उसके लिए एक पल नहीं, बहुत सारे साल देने होते हैं. जज्बात और वक्त एक पल में नहीं बदलते हैं. Yeah, I said 12,000 pages and I am very much clear on that front. क्यों कह दूं? अकेला income tax is around 1,500 to 2,000 pages. अकेला income tax. Your ICI module and reference book put together. When you take the example of, there is a renowned author on that, उसके 7 मॉड्यूल आते हैं, लोग लेके आते हैं और वो पढ़ते हैं. Indirect taxes is somewhere around what, 600 to 800 pages. That is GST. नहीं, 800 नहीं, 1,500 pages is GST. Like this it continues. और लगभग 12 से 15,000 पन्ने का सिलेबस है. अब 12 से 15,000 पन्ने तुम लोग पढ़ते रहोगे, तुमको तो ऐसा लगेगा हम लोग समुद्र में तैर रहे, कहीं किनारा ही नहीं आ रहा है. और नहीं आएगा. Can not come. Point that I want to highlight is कि आपको पता कैसे चले कि आप सच में परफॉर्म कर सकोगे या नहीं. That's where the testing comes into play. And I told her that you go and write the past examination papers and you start feeling that whatever I had written, whatever I have referred, that I'm able to recall. By that way, automatically the confidence start getting built. Mind well, she's been studying since January, क्योंकि हर एग्जाम was in the month of May. जब एग्जाम पोस्टपोन हो गई अप्रैल में, उसने पढ़ाई छोड़ के मई, जून, जुलाई में वापस से आर्टिकलशिप पे गई. एंड अगस्त से शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, स्टडिंग अगेन. सो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 7 महीने पढ़ाई कर रही है. 6 महीने तो ऑलरेडी हो चुके हैं. 7 महीने तक पढ़ाई करेगी और उसके बाद में अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो शी विल फेल, और एनीवन विल फेल. Because examination cracking is possible only if you are confident enough along with your preparation. मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं. So you need to be confident and at the same time you need to be prepared for the challenges. तो आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए और आपके पास कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए. And this too can only take you to the real level of professional exams. Right? For finals, the portion is not bounded. Who said it is not bounded? It is. But for final, they ask from the practical point of view, so you become more. आपका थियरी का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है.
And during the articleship time, you get a lot of information. No further questions on that at all. मेरे सामने एक किस्सा आया था, मैंने वो आपके सामने रखा, इसीलिए कोई भी बंदा किसी भी तरह का सवाल नहीं पूछेगा इसके अलावा. Alright? Point that you have to simply remember is, एक केतन तू कहां चीरफाड़ करने में लग जाता है? पास हो गया ना, मैं अभी सीए है ना, फिर तेरे को क्या फर्क पड़ता है मैं कौन से सब्जेक्ट में पास हुआ और कौन से सब्जेक्ट में नहीं. इनफैक्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं फेल जो हुआ था तो एग्रीगेट में फेल हुआ था. इट वाज नॉट द सब्जेक्ट दैट आई हैड फेल्ड इन. राइट? मेरा बेसिक जो प्रॉब्लम था, दैट वाज माय हैंडराइटिंग ओनली, दैट ऑलवेज ruined my life. There was this fellow, he's a chartered accountant now. I think CPT he got 3rd merit rank all India. No, 3rd merit rank all India in CPT. In intermediate he got somewhere around 17th merit rank all India. And in final he got somewhere around 32nd merit rank all India. सारा मेरिट रैंकर. उसके लिए कभी ये सवाल बनता ही नहीं था कि मैं पास होऊंगा या नहीं. उसके लिए सवाल हमेशा यही बनता था कि मैं कौन से रैंक पे आऊंगा. That is how he used to prepare. Knowledge, मतलब content. CA Ashish Goel is the name of that fellow. CPT merit ranker, intermediate merit ranker, final merit ranker. This person had come for the speech. जब CA बन गया था, उस समय पे स्पीच देने आया और उस समय कहने लगा कि यार मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरा हैंडराइटिंग. अगर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती, सीए इंटरमीडिएट की बात है, नॉट एट फाइनल लेवल, सीए इंटरमीडिएट पास होने के बाद में, ही सेड कि अगर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी होती, अगर मैंने सही हैंडराइटिंग से लिखा होता, I would have got, he had come 32nd merit rank at that time, I would have got at least he said 20 extra marks, 25 extra marks. क्यों? In accounts he had got 98 marks and 99 marks. 2 accounts के सब्जेक्ट हुआ करते थे, अभी भी 2 सब्जेक्ट होते हैं इंटरमीडिएट लेवल पे. तो एक अकाउंट्स में उसको 98 मिला था, दूसरे अकाउंट्स में उसको 99 मिला था. Then in costing there was some theory, in income tax, there was theory in audit, there was the theory in the subject of ITSM. It used to be ITSM, then it came to the names changed, ERP etc. was the name, new name given, and law. 5 सब्जेक्ट थ्योरी के थे. कहने लगा ये 5 सब्जेक्ट में अगर मेरे थियरी, जो मेरी राइटिंग प्रैक्टिस थी, वो अगर अच्छी होती तो मेरे कम से कम 5 मार्क हर एक में बढ़ जाते. कितने? 5 marks each. So 5 marks each into 5 papers, that means he must have got 25 additional marks. He had come at 32nd merit rank. अब मेरिट रैंकिंग ऐसी होती है, हर मार्क पे एक मेरिट रैंक घसरता है. पहले और सेकंड मेरिट रैंक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, उसके बाद सेकंड ऑनवर्ड जो मेरिट रैंक होता है वो एक मार्क से घसरते रहता है. एक मार्क कम हुआ अगला नंबर, एक मार्क कम हुआ अगला नंबर. दैट्स हाउ द मेरिट रैंक्स आर डिक्लेयर्ड. तो अगर वो 32nd मेरिट रैंक ऑल इंडिया आया था और 25 मार्क और बढ़ जाते उसके, देन ही वुड हैव गॉन टू व्हाट? 7th मेरिट रैंक ऑल इंडिया. He got what? 32nd merit rank. Had he got 5 marks each in 5 theory papers, he would have got 25 additional marks. That 25 additional marks would have taken him from 32nd merit rank, which he got, to 7th merit rank. That would have been the situation. Sir, नहीं, हैंडराइटिंग के लिए मार्क्स नहीं करते हैं. हैंडराइटिंग जब खराब होती है तो आपने क्या लिखा है उसको ठीक से समझा नहीं जाता है, और क्योंकि उसे ठीक से समझा नहीं जाता है तो आपके मार्क्स कम होने की संभावना बढ़ जाती है. Where you would have got otherwise say 5 marks on a question of 5 marks, because of the bad handwriting, because of the wrong handwriting, you get 4 marks in that.
और ऐसे एक एक मार्क जब कटना चालू होता है, चल छोड़ दो, 1 मार्क ही छोड़ दो, आधा मार्क कटा गया। अगर आधा आधा करके 10 क्वेश्चंस में, आपके 5-5 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस में अगर आधा आधा मार्क करके कट जाता है तो 5 उड़ जाते हैं। उस बंदे के लिए तो चिंता ये थी कि मैं कौन सी रैंक पे आऊंगा। भाई साहब और मैडम लोग, हम में से कई लोग के लिए ये चिंता होती है कि हमारा 50% बनेगा या नहीं। Isn't it? Yes or no? There is no problem in what kind of handwriting you have, whether it is a block handwriting, whether it is a cursive handwriting, that doesn't make any difference. The point of importance is what you're writing, one should be able to read it. There has to be the legibility in what you write. And if you are writing what is legible to someone, Vedant, I am bringing the fact in front of you. इससे अगर तुमको डर लगता है, इसका मतलब you have to improve upon that. And this is the absolutely right time to improve, I would say. इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन बताऊं आपको, और मैं सीरियसली कह रहा हूं, आपका लॉ पेपर, लॉ प्लस बीसीआर, ये जो आपका पेपर है, इसको अगर कोई र्यून कर सकता है तो वो आपके हैंडराइटिंग है। क्योंकि बाय द टाइम योर लॉ सिलेबस गेट्स ओवर, योर बीसीआर सिलेबस गेट्स ओवर, यू आर थ्रू एंड थ्रू इन दैट। आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है, जब तक लॉ ये सब्जेक्ट सीपीटी पैटर्न में हुआ करता था, जब तक वो सीपीटी पैटर्न में हुआ करता था, उस समय पे हमें हर अटेम्प्ट में लॉ में 40-40 नंबर, 40 पे 40 लाने वाले ऐसे ढीगो मिलते थे, ढेरों लोग। पीपल हु हैव गॉट 40 ऑन 40। क्यों? तो कंसेप्ट स्ट्रांग है, कंसेप्ट को कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता था। Ashutosh, my handwriting even today is not legible. Many times you people find it difficult to understand what I have written. But for me, the point is that I have got it cleared. I have gone through it. So I don't have any kind of problem now. अब मेरी handwriting अच्छी है गंदी है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है. If your handwriting is legible, I'm not an handwriting expert. Please do not ask me on the questions on that. What I am telling you simply is, whatever you write should be that particular writing should be readable by a third party who's reading what you have written for the first time. There are simpler ways to do it. There are simpler systems to do it. And what those are? One, you do the daily. I'm not saying regular as a word. I'm using the word as daily. You need to do daily writing practice. इसके ऊपर और थोड़ा सा एक जबरदस्त वाला सॉल्यूशन दूं। ये तो जो मैं आपको बता रहा हूं, ये है होम्योपैथी वाली दवाई। होम्योपैथी वाली दवाई का असर ओवरनाइट नहीं होता है, पर होम्योपैथी की दवाई लेनी बहुत समय तक पड़ती है। पर जब उसको आप लंबे समय तक उस दवाई का सेवन करते हो, तो उस दवाई का असर A1 हो जाता है, ये बात पक्की है। कंसेप्ट अच्छा हो और साथ ही प्रिपरेशन भी अच्छी हो तो आपका फायदा होने वाला है। And the best solution to do this writing practice is, you have got 4 subjects in your overall course, 4 papers, 6 subjects, जिसमें से 3 पेपर आपके, 4 पेपर जो थियरी बेस्ड के पेपर है। एक पेपर आप देने वाले हो एमसीक्यू फॉर्म में, देने वाले एमसीक्यू फॉर्म में हो, पर उसमें लिखा सारा थियोरेटिकल है, जिसमें है आपका इकोनॉमिक्स और बीसीके, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। और दूसरा जो आपको एक्चुअल लिखना है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है आपकी एग्जाम के लिए भी, दैट इज लो एंड बीसीआर, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग।
I'll give you a very simpler solution on this now. Try observing it. चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं इसमें, क्योंकि आप लोगों को ना अकाउंटेबिलिटी नाम की बात नहीं है. और ऑन टॉप ऑफ दैट, सीए फाउंडेशन में आपके पास लॉ पेपर है, बीसीआर है, इकोनॉमिक्स है, बीसीके है. अब इसमें से इकोनॉमिक्स बीसीके जो है, ये आप दो पेपर्स थियोरेटिकली नहीं लिखने वाले, इसके आप एमसीक्यू सॉल्व करने वाले. पर अगर आप 12th की बात कर लो तो आपके पास इकोनॉमिक्स है, आपके पास ओसीएम पेपर है. ये आपके स्क्रीन पे नहीं है, मुझे पता है, मैं खुद के लिए लिख रहा हूं. आपके पास इकोनॉमिक्स का पेपर है, आपके पास ओसीएम का पेपर है. मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गॉट दिस एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट. व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आप एक रजिस्टर लो और उस रजिस्टर का एक पन्ना, ज्यादा नहीं, ओनली 1 पेज ऑफ योर रजिस्टर, सिर्फ एक पन्ना, ओनली 1 पेज, यू स्टार्ट राइटिंग कॉपी एंड पेस्ट. दिमाग नहीं लगाना है, भगवान ने बहुत कम दिया है, सब कुछ वहां लगा दोगे तो एग्जाम में क्या लगाओगे? कॉपी एंड पेस्ट. लॉ, बीसीआर, 12th का इकोनॉमिक्स और 12th का ओसीएम, ये 4 पेपर्स. बीसीआर अभी नहीं भी लिखा तो भी चलेगा. लॉ फॉर द टाइम. सर कहां से लिखेंगे? लॉ आईसीआर मॉड्यूल अवेलेबल है आपके पास, यू जस्ट पिक इट, नॉट फ्रॉम द क्लास नोट्स. आईसीआर मॉड्यूल लिखो ना, क्लास नोट्स में तो वैसे भी एसएम सर पढ़ा रहे हैं तुमको. सो यू पिक अप द आईसीआर मॉड्यूल. यस, पूरा लिटरल कॉपी पेस्ट. आप A4 साइज का बड़ा वाला रजिस्टर लेके आना, नहीं तो मास्टर ने कहा है कि एक ही पन्ना लिखना है, तो वो फिर एक ही पन्ना आप छोटा वाला दे, उसके लिए बुक भी छोटा लेके आओगे. होम्योपैथी का जितना डोज चाहिए उतना पूरा लेना पड़ता है. अगर वो छोटा वाला कॉम्प्रेस्ड वाला बुक लोगे तो उसके आगे पीछे लिखना है. यू जस्ट राइट दैट मच. वो इज पे खत्म होता है, आर पे खत्म होता है, डॉट पे खत्म होता है, कोमा पे खत्म होता है. दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस. अगले दिन अगले पॉइंट से स्टार्ट करेंगे. You do something like this. I'm seriously telling you. You do this for next 3 months. Only for 3 months. इसके फायदे बताऊं आप? कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है इसमें. इसके फायदे बताऊं? फायदा नंबर 1, आपका राइटिंग प्रैक्टिस चालू हो गया. फायदा नंबर 2, आपकी अच्छी हैंड राइटिंग के साथ आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग बढ़ जाती है. और फायदा नंबर 3, क्योंकि आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट है आप उन्हीं को उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिनिमम 2 बार पढ़ रहे हो. एक लिखने के लिए पढ़ते समय, एक लिखने के बाद पढ़ना पड़ता है. और अगर आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ना चालू कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप सब्जेक्ट भी तो कवर किए जा रहे हो. So there are multiple benefits out of a single method. Consistency is the key. और अगर सच में आपको ये लगता है कि ये करना चाहिए, तो 1 पेज आप सुबह लिखो, 1 पेज आप शाम में लिखो. That's it. 2 pages every day is what you have to do. 1 page in the morning and 1 page in the evening. आप 2 अलग-अलग सब्जेक्ट लिखो ना. I said subject of law from CA Foundation, subject of economics from 12th and subject of OCM from 12th. If you do this writing practice, mind well my dear friends, मैं आपको एक इसमें accountability बताता हूँ. थोड़ा सा accountable बनेंगे हम लोग. आज का है ट्यूसडे. Every Sunday, you only send me a text message, sorry, WhatsApp message. Every Sunday, you send me a WhatsApp message. As what? During this week, how many pages you have written?
You have to write what? During the date from, आज की डेट क्या? 15 तारीख. During the date from 15th to 22nd or 21st, whatever is that date on Sunday. During this date to this date, you wrote 7 pages, 10 pages, 12 pages, whatever it is. And you write your name below that. That's it. And your batch. सिर्फ इतना करो. At the weekend, हर संडे के दिन, ऐसे आप सिर्फ मुझे 4 संडेज तक के भेजो. Only 4 संडेज. आप सुबह में भेजो, शाम में भेजो, रात में भेजो, जब आपको भेजना है. You send it according to your comfort. Mind well, my dear friends. ये मैंने क्यों कहा you should be sending it? Just for the sake of creating the kind of accountability. And when you start doing it, when you start writing and you have to send it to someone, you have to tell it to someone, you become more conscious about that. And मैंने फायदे आपको पहले ही बता दिए हैं. इसका एडवांटेज क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. एंड माइंड वेल माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ 5 मार्क्स की बात कर रहा हूं. अगर आपने ये राइटिंग प्रैक्टिस अच्छी कर ली तो फाउंडेशन लेवल पे तो 10 ही मार्क्स बढ़ेंगे. अकाउंट्स के 5 और लॉ और बीसीआर के 5. बट व्हेन यू गो टू द नेक्स्ट लेवल, एंड पता नहीं 12th के कितने मार्क्स बढ़ा के दे दिए मैंने आपको. When you go to your next level, that is at intermediate level, 350 मार्क की थियरी है out of 800. 350 नहीं, 450 मार्क की थियरी out of 800. At your final level, 450 मार्क की थियरी है, मतलब 4.5 पेपर. और अगर 4.5 पेपर में आप 5 मार्क्स बढ़ा के आते हो, मतलब 25 मार्क. 25 + 25 50 प्लस 10 60, और 12th के कम से कम 30 मार्क्स तो बढ़ा के दे दिए मैंने आपको. 90 मार्क, एक पेपर का पूरा पासिंग मैंने दे दिया आपको. Sarcasm apart, jokes apart, but only thing is that you have to resolve and you have to do it. And when you start doing it with the confidence, you start getting the confidence each day. You do only 2 pages. I'm not saying 3 pages. You do only 2 pages. 1 page in the morning, 1 page in the evening. That's it. बाद में जब एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक खत्म हो गया, आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो ना, उसको रिप्लेसमेंट दो ना. मतलब आपका सब्जेक्ट भी चेंज होता रहेगा, आपके लिखने की लिखावट भी बदलती रहेगी, क्योंकि हर सब्जेक्ट में अलग अलग कंटेंट आता रहता है. And mind well, there are certain terms which come in that respective subject which you have not understood, which you will be understanding with the context. वो भी एक added advantage हो जाएगा, आपका vocab बढ़ना चालू हो जाता है. So there are multifaceted advantages of doing the consistent writing practice. If you're serious enough, if you're worried enough about what you want to achieve in your life, you need to do these small steps. बहुत ही चिल्लर सी शायद चीज लग रही होगी आपको, but there are the scenarios, my dear friends. People are not able to go ahead. People have got the troubles because of their handwriting. People have got the troubles because they are not consistent enough. That's what you have to prove to yourself. क्योंकि आप जब खुद के सामने प्रूव करोगे कि हाँ ये मुझे करना है और मैं ही करूंगा, तो आपका राइटिंग प्रैक्टिस विल गिव यू huge confidence. And as I said earlier, the professional exams are more about the confidence than the content. क्योंकि कंटेंट तो हर कोई लेके आएगा, नॉलेज तो हर कोई लेके आने वाला है, उसको अप्लाई करने के लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है. राइट, आई होप आज के लिए इतना बहुत ज्यादा हो गया. आप इस चीज को कैसे पचाओगे पता नहीं, और आप में से कितने लोग इसको फॉलो करोगे ये भी पता नहीं, बट यू नीड टू डू इट. क्योंकि वो जो ICAI मॉड्यूल है ना, वो बच्चों से कहते रहते हैं, स्टूडेंट से कहते रहते हैं क्या, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे. ICAI मॉड्यूल सेइंग टू द CA स्टूडेंट्स, ओ मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे,
बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। और मुझे ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि आप दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करोगे और बिल्कुल भी नहीं पछताओगे, राइट? आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस एवरी संडे नाउ, so you will, yeah, of course I'll be reading your messages. So you send the messages, I'll be waiting for it, and we'll be meeting tomorrow. Thank you very much.